अगर आपको अपना आत्मसम्मान चाहिए या आपको अपना आत्मसम्मान बचा के रखना है तो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों का न सिर्फ दोहराया बल्कि ये वादा भी किया कि इसके लिए रिलायंस दोगुनी मेहनत करेगा। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि सभी इंडस्ट्री को एक तरफ एकजुट होकर काम करना होगा। मुकेश अंबानी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई है। अमेरिका बार बार भारत के आत्मसम्मान को चुनौती दे रहा है। आत्मसम्मान के खातिर आत्मनिर्भरता के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने न सिर्फ बयान दिए बल्कि इस तरफ कई ऐलान भी किए। एक निवेशक होने के नाते इन ऐलानों को कैसे देखा जाए और ये ऐलान देश को आत्मनिर्भर बनाने में कितने कामयाब होंगे, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, मार्केट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील सुवर्णम साहब, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब, रोहा एसेट मैनेजर्स के हेड इक्विटी दलजीत सिंह कोहली साहब हैं और रक्सट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन पहले कुछ ऐलान देख लेते हैं क्या कुछ मुकेश धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस के एजीएम में कहा है, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। India must gain greater economic strength and do so with a sense of urgency. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, rightly exhorted us in his Independence Day speech that the yardstick of Atma Samman, self-respect, is Atmanirbharta, self-reliance. India must become self-reliant to the maximum extent in key technologies, critical industries, and other vital sectors of the global economy. Throughout our history, Reliance has contributed to this mission of building a strong India, a Balwan Bharat. I assure our respected Prime Minister that Reliance will follow his command with redoubled efforts, that the per capita income of Indians could rise 4 to 5 times within the next 2 decades, making India not just a prosperous nation, but also a more equal nation. And more importantly, India need not copy any foreign model. We have the ability and the responsibility to create an India-first model of development. This model will use deep tech to bring prosperity and security to India, improve the quality of life of each and every Indian, and protect the environment. This model will also harmonize technology with democracy, economy with culture, spirituality with science, and national aspirations with friendship across all nations. This is the collective dream of nearly 1.5 billion Indians to build a nation that leads with both prosperity and compassion. To announce the formation of a new wholly owned subsidiary of Reliance called Reliance Intelligence. This new company is conceived with 4 clear missions. 1, to house India's next generation AI infrastructure. Reliance Intelligence will build gigawatt scale AI-ready data centers powered by green energy and engineered for training and inference at national scale. Work has already begun on the gigawatt scale AI-ready data centers in Jamnagar. These facilities will be delivered in phases aligned to India's growing needs, powered by Reliance's new energy ecosystem and purpose-built for AI training and inference. 2, to house global partnerships. Reliance Intelligence will bring the world's best tech companies and open source communities together with Reliance's deep domain expertise and execution strength to deliver performance leadership, resilient supply, and India-first compliance for AI. 3, to build AI services for India. Reliance Intelligence will deliver trusted, easy-to-use AI services for consumers, small businesses, and enterprises, and solutions for sectors of national importance, such as education, healthcare, and agriculture.
reliable at scale and affordable for every Indian. And 4, to house talent for AI. Above all, Reliance Intelligence will create a home for world-class researchers, engineers, designers, and product builders, combining the speed of research with the rigor of engineering so that ideas become innovations and applications, providing solutions to India and the world. Today, it is my proud privilege to announce that Jio is making all arrangements to file for its IPO. We are aiming to list Jio by the first half of 2026, subject to all necessary approvals. I assure you that this will demonstrate that Jio is capable of creating the same quantum of value as our global counterparts. I am sure that it will be a very attractive opportunity for all investors. तो ये आप सुन रहे थे मुकेश धीरूभाई अंबानी को, जो कि रिलायंस एजीएम में बोल रहे थे। उनके कुछ स्पीच के कुछ हाइलाइट्स थे और इसकी शुरुआत करते हैं इस पे चर्चा की सुनील सुवर्णम साहब आपसे, कि ऐसे समय में मुकेश धीरूभाई अंबानी का ये सारे बयान आए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चुनौतियां रही हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें आत्मसम्मान के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और रिलायंस इसके लिए दोगुनी मेहनत करेगा। तो स्पेसिफिक ऐलान जो किए गए उस पर मैं आगे चलकर के आऊँगा, लेकिन एक मोटा मोटी आप इससे क्या टेक अवे लेते हैं? नहीं, ये एक हौसला बढ़ाने की काम है जो दिग्गज को लेना चाहिए। देखिए, लीडरशिप होता है, जैसे प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस स्पीच पे इस ऐलान को आत्मनिर्भरता और स्वराज का ये लिया था, वैसे ही मानते हैं कि रिलायंस आज सबसे दिग्गज कंपनी है जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है देशवासियों के लिए। तो उनके लीडर अगर ऐसे कहते हैं ना, तो उससे एक हौसला बढ़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इस टाइम में जहां पे चुनौतियां ज्यादा है देश के ऊपर, और हम नए दोस्त, पुराने दोस्त तो कभी एनिमीज बन गए, पुराने एनिमीज अभी दोस्त बनेंगे। तो इस सिचुएशन में हौसला, मेरे ख्याल में वही एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म वाली स्पीच जरूरत थी और उन्होंने वो दिया। आई थिंक बस एट दिस मोमेंट मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, ये एक ज़रूरत थी ऐसे मोमेंट पे कि एक हौसला बढ़े कि हमारे अंदर भी ताकत है, इंडस्ट्री एकजुट है इस चुनौतियों का सामना करने के लिए और इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभय अग्रवाल साहब। जी लक्ष्मण जी। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे एजीएम में जो सारे आई थिंक एजीएम में जो उन्होंने कहा और उसके पहले भी जो कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एजीएम में उन्होंने कोई नई बात कही। आई थिंक जो ग्रुप का फोकस है काफी समय से मैं देख रहा हूँ, वो बात करते रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में, नए स्पेसेस में ऐसे एंटर करें जो फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेसेस हैं, डीप टेक, डिफेंस टेक, सेमीकंडक्टर, एआई। तो पर ये एक बड़ा अच्छा मौका एक हमको मिल रहा है लक्ष्मण जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी देश एक किसी क्राइसिस से निकलता है, और एक मैं इसको इकोनॉमिक क्राइसिस कहूंगा, जो अभी यूएस ने हम पे टैरिफ लगा के क्रिएट किया है कि या तो आप घुटने टेक दीजिए अपने जैसे दूसरे देशों ने टेक दिए, या फिर आप टैरिफ ज्यादा दीजिए। तो आई थिंक जो हमारा स्टैंस है, अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज से लेके कॉर्पोरेट लीडर्स तक सबने एकजुट होके इसको सपोर्ट किया है। और मार्केट्स पे प्रेशर जो भी रहे, पर मुझे लगता है कि जैसे रिलायंस के चेयरमैन ने आज कहा और एक कमिटमेंट दिखाई कि नई टेक्नोलॉजीज की तरफ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने अनाउंस किया, गीगावाट एआई जो डेटा सेंटर बनेगा, जिसके लिए अभी भी हमारी कंपनी जो है बाहर के डेटा सेंटर्स पे डिपेंडेंट है प्रोसेसिंग के लिए, तो वो हम इंडिया में कर पाएंगे। आई थिंक वही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव है ये जो कमिटमेंट है, जॉइंट कमिटमेंट है बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर ये साथ में चल सके और हमारा कंजम्पशन मार्केट वैसे ही इतना बड़ा है, तो मुझे लगता नहीं कि हमें किसी भी टैरिफ से या किसी से भी डरने की जरूरत है।